All right, we are back at that time of the year when the elections are truly underway and we have entered the poll season. Today, in fact, was the last day of campaigning for phase 1 of elections in Jammu and Kashmir. The first vote is going to be cast on the 18th of September. And on this day, Union Home Minister and senior BJP leader Amit Shah was in Chenab Valley to host back-to-back 3 rallies. Look at the importance that BJP is giving to the Valley region. It is very significant because remember, BJP's stronghold has been the Jammu region, but they are going all out, pressing all buttons, going all guns blazing against its opponents because this time it is going to be a battle of prestige for the BJP. In Jammu and Kashmir, the main contenders to the BJP are this time National Conference and the Congress party that have come into alliance to fight an election. And today when Amit Shah spoke to people, he said that these are the two parties that have earlier called each other traitors. He was actually referring to Congress party calling Abdullah Senior a traitor several decades ago. He said today they are again indulging in ilu, which means that today they are showing the bonhomie all because of their lust for power, even if in doing so they have to indulge in activities and make promises that are against the interest of the country and against the interest of Jammu and Kashmir. अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। And all sides in Jammu and Kashmir currently know that this is going to be a very, very high stakes battle for them, especially the National Conference, because remember, Omar Abdullah, after initially saying that he is not going to contest elections, now is into the fray, contesting from not 1 but 2 seats, and he has been taking on the BJP that is not contesting on every seat in the valley. However, National Conference says that there is an increase in number of independents that have been fielded, and they see BJP hand behind this. Omar Abdullah has been on multiple occasions alleging that BJP is actually the puppeteer. It is pulling the strings of parties like AIP. Remember, Awami Ittihad Party belongs to Engineer Rashid, the same candidate who defeated Omar Abdullah in Lok Sabha elections, and he has now announced a tie-up with Jamaat-e-Islami. Jamaat-e-Islami is a banned outfit, but has been allowed by the government to field its candidates in the upcoming elections. Omar Abdullah sees a bigger hand behind this alliance. Listen into what he had to say. तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे।
Now, BJP has got its priorities clear today. When Amit Shah was addressing his first rally in Jammu and Kashmir in the Chenab Valley region, he said that I had asked my team to ensure that I do have public gatherings, public addresses in this region because I want to send a message to those who were talking about Kashmir being a hotbed of terrorism, who were talking about how normalcy could not have been possible in the state. Amit Shah's presence in that area would send out a clear and unequivocal message of how far these regions have come. Remember, Amit Shah is in Chenab Valley today. After the delimitation process, there has been an increase in number of seats. Earlier, there were 6 seats in this region. Now it has 8 seats. Crucially, one of them, where he was addressing a rally earlier in the day, is a Hindu majority seat. Here are the reactions coming in. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जारी है। पहले फेज का आज आखिरी दिन है और 6 बजे चुनावी अभियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक समाप्त होगा। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के शुपिया में हैं, जो कहीं ना कहीं पर एक जमाने में आतंकवाद का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस जोश के साथ इस चुनाव में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के समर्थक में यहाँ पर जमा हुए हैं और आज यहाँ पर पार्टी के बड़े सीनियर राम माधव इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2019 के बाद अपनी प्रेजेंस जो है वो दक्षिण कश्मीर में, खासतौर पर अगर बात करेंगे शुपिया पुलवामा की, और यहाँ पर लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कि कितना उत्सव है जवानों में। अब लोग समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। इस बार पूरी कोशिश के साथ, इस बार पूरी जबरदस्ती मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड करेगी। शोपियान की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। बाकी उनको पता है कि हमें क्या करना है। अब लोगों को भी समझ आ जाए पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया, खासकर कि युवाओं के लिए, खासकर गरीबों के लिए, हर घर के लिए कितना काम किया बीजेपी ने। और इसी वक्त, इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के जो भी युवा है इस वक्त जोर इस जलसे में आ रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट जो है, हमारे मंडेट जो है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये सबको मालूम है। इसीलिए इतना जोश है कि हम अपने कैंडिडेट को जावेद कादरी को यहाँ से जिता के जाएंगे। आज शोपियान डिस्ट्रिक्ट में फैसला किया कंवल को खिलाना है। इस बार हमें बदलाव चाहिए। कंवल ने यहाँ काम किया है, इसलिए हम कंवल को खिलाएं। हमने पूरा वादा किया है, कंवल को खिलाना है इस बार। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ युवा और पुरुष जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और अच्छी खासी एक तादाद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस एक तरीके से 2019 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, अपनी वोट शेयर को बढ़ा रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक पूरी प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में पूरी जोश और जो है ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। एक समय पूरा साउथ कश्मीर, विशेषकर शुपिया, पुलवामा जैसे जिले आतंकवाद से पीड़ित थे, ग्रस्त थे। हमको भी यहाँ आना बहुत कठिन माना जाता था, बहुत मुश्किल से हम आते थे, अनंतनाग वगैरह। पर आज आपने दृश्य देखा है कितना उत्साह है बीजेपी जैसे एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ने का। हमारा आतंक के खिलाफ का जो स्टैंड है वो लोकविदित है, फिर भी आज हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसका एक ही संदेश है, जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर की जनता आज आतंकवाद को रिजेक्ट किया है, आतंक मुक्त कश्मीर चाहता है। उसके लिए बीजेपी कटिबद्ध है, आतंक मुक्त कश्मीर बनाएंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। मैडम, इस वक्त आप दक्षिण कश्मीर के शुपिया में हैं। एक जमाने में आतंकवाद का, स्टोन पेल्टिंग का एक सेंटर था। कैसे आप इस चेंज को देख रही हैं? इस वक्त जो कमल का फूल है वो लेके आप यहाँ पर दक्षिण कश्मीर पहुंची हैं। आज आप देख रहे हैं कि जावेद कादरी साहब के कैंपेनिंग के लिए खुद राम माधव जी आ रहे हैं और आज लोगों का जनसैलाब जो यहाँ पे उमड़ आया है, वो जो बातें थी हमारे अपोजिशन पार्टीज की वो सारी खत्म हो गई हैं और आज आपके सामने लोगों को आप अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं कि किस तरह से शुपिया इलाके में जो हमने बहुत रैलियां की और आज उसी रैली का आप देख रहे हैं फाइनल डे है और लोग आ रहे हैं और
लोगों ने तय किया है कि बीजेपी को यहाँ से जिताना है। एनसी और कांग्रेस ये चुनाव अलायंस में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी? उनको अलायंस करना पड़ा। हम अलायंस के बगैर हैं क्योंकि हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। अकेले में लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। Time for us to take a very quick break, but on the other side, we'll talk about the two other regional parties. One, which is perhaps in probably the most politically strong position right now, and the other that might be headed towards political oblivion, the NCE and the PDP. Stay tuned.